वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए जो सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास सीक्वेंसिंग के 3 मशीन के जो क्वेश्चन बाकी है, लेट अस कंटिन्यू विद दैट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 in that first one. First of all, the instruction is given as find the optimum sequence that minimizes the total time required to complete the following jobs in the order A, B, C. स्टूडेंट्स याद करो, 3 मशीन प्रॉब्लम में हमने एक क्राइटेरिया देखा था कि मशीन जो है उसके ऑर्डर आपको चेंज करके दे सकते हैं। जो भी आपको प्रोसेस करने हैं वो तीन मशीन के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर इन द क्वेश्चन मशीन A, machine B and machine C as that order question is available, whereas the processing is also to be done in the same order of A, then B and then C. So the processing times are given in hours in this table, and with that you need to find out the total elapsed time and the idle time for all these 3 machines. Let us start with our solution. Student, हमारा पहला important काम रहेगा, this 3 machine problem is to be converted into 2 machine problem, and for that we need to have certain conditions to be satisfied, and those conditions are, first of all we have to check. So we have to write given problem is based on 3 machines. Converting into 2 machine problem by checking following condition. Condition number first. What is the condition? देखो स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ 3 मशीन जो है, मशीन ए बी सी, उसमें ए जो है फर्स्ट मशीन है, बी जो है वो सेकंड है और सी जो है वो थर्ड है, इन दैट ऑर्डर। तो पहले मशीन का जो मेरे पास है, जो फर्स्ट मशीन ए, वो मेरा फर्स्ट है, ऑर्डर के हिसाब से जाना है। नाम कुछ भी हो, मेरे को नाम से लेना देना नहीं, मशीन के नाम को कुछ भी उन लोग देंगे। आई डोंट वॉन्ट टू सी द नेम, आई वॉन्ट टू सी द ऑर्डर। सो द फर्स्ट मशीन, मेरा कंडीशन क्या है? minimum time of A should be greater than or equal to maximum time of B. That is the second machine. तो एक्चुअली कंडीशन क्या है? जनरल वाइज से हम सोचेंगे तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? तो if minimum time of first machine should be greater than or equal to maximum time of second machine. But in our case, in our question, minimum time of first means A machine, and that should be greater than or equal to maximum time of सेकेंड मशीन, दैट इज बी मशीन। तो जरा देखो तो स्टूडेंट, ए मशीन में मिनिमम टाइम कौन सा है? मिनिमम टाइम इज 5. इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ बी? मैक्सिमम टाइम बी में क्या दिया हुआ है? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम 5 ही है, देख लो। सो विच इज ट्रू? विच इज करेक्ट? 5 is greater than or equal to 5, or equal to आ गया ना 5, so which is true, and therefore condition is satisfied. अच्छा सर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नाउ कंसीडरिंग machine G and H as a fictitious machines where
G is equals to A plus B and H is equals to B plus C. स्टूडेंट आपको करना क्या है, दो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए पहले दो मशीन जो है उसके टाइम को ऐड कर देना है और उसको G मान के चलना है, और दूसरे दो मतलब कि सेकेंड और थर्ड उन दोनों के टाइम को ऐड कर देना है, उनको आपको H मान के चलना है. So here I would convert into two machine problem first. Okay, so we will prepare two machine problems. Okay students, so now you add machine A and machine B time so as to get G machine. 6 plus 4 this is 10, 7 plus 3 this is 10, 5 plus 2 that is 7, 11 plus 5 that is 16, 6 plus 1 that is 7, 7 plus 5 that is 12, and 12 plus 3 that is 15. Then machine B time and machine C time you have to add for all the jobs. It will be 7, 11, 9, 9, 10, 13 and 10. Student, so now we can have our optimum sequence. So now we will prepare optimum sequence G and H. So very first the minimum time appears that 7 hours, and that belongs to job third and job number 5th, and that too in machine G. So if you can have this third job first or 5th job first, we have tie situation. Now if we consider this first job, this 7 belongs to H also. So 7 तीन जगह पे आ रहा है, minimum value 7 appears at 3 places. तो मैं randomly यहाँ पे 7 का सिलेक्शन कर लूंगा. First you can take anyone, as I can take first 7, this one in this H machine in first job. So first job I will write here in H machine. This is done. After this next 7 I can take this third job or for 5th job. Now there is a tie case. So between these two, third and 5th, in the G machine. So I'm writing first third and then 5th, and I'm making here bracket between these two box because I know यहाँ पे ये tie situation generate हो रहा है. I can take 5th and 3rd. जो मैं next sequence generate करूंगा उसमें मैं 5th को पहले ले सकता हूँ और बाद में 3rd को लूंगा, तो मेरी नई sequence बन जाएगी. So 3rd is also done, 5th is also done. So cancel those jobs. Now after 7, next minimum we have, that is 9, and that is only at one place available for H machine in the job 4th. So 4th will appear next in the H job. So this will be also assigned. And after that 9, the next minimum we generate as duration is 10. After 9 we get 10, and that 10 is at two places, but they are belonging to both
different machines and different jobs, so there is no such possibility of tie. So this second job in the G machine, I will write here, and then this 10 in the H machine for seventh job. I will write here. This is also done. This is also done, and the remaining one, that is the sixth job, automatically placed in the remaining box. So if you see now, between this third and fourth only we got the tie situation. So next alternate optimum sequence, in that I will alter this both place fifth and third. Other jobs will remain as it is. So student, this way we are getting two alternate optimum sequences. Now any one you can take and make work table. So let us prepare the work table for three machines, machine A, machine B and machine C. In time, out time, and the job are to be processed in the order that I have taken. First alternative sequence, you can take second one. So now I am preparing work table as per the sequence in the order third, fifth, second, then sixth, seventh, fourth, and first. Okay, so starting time with a 0 always. Now मशीन ए के ड्यूरेशन को हमें देखना है और आगे बढ़ना है. फर्स्ट कॉलम फॉर मशीन ए, थर्ड जॉब से शुरू करना है. थर्ड जॉब में देखो कितना ड्यूरेशन है, 7 आवर्स. 7, 0 + 7, 7. सेवेंथ आवर पे नेक्स्ट फिफ्थ जॉब शुरू करेंगे. फिफ्थ जॉब टेक 9 आवर, 16. So as you know, starting always with 0 time in time, and I have to begin with third job. I am in machine A. Third job takes 5 hours, so add in this. फिफ्थ आवर पे थर्ड जॉब खत्म हो जाएगा. फिफ्थ आवर पे फिफ्थ जॉब शुरू करेंगे. फिफ्थ जॉब टेक्स 6 आवर्स. एड इन दिस, इट इज 11th आवर पे खत्म होगा. 11th आवर पे नेक्स्ट सेकेंड जॉब शुरू करेंगे. सेकेंड जॉब टेक्स 7 आवर्स. तो 18th आवर पे ये फिनिश होगा एंड 18th आवर पे सिक्स्थ जॉब शुरू हो जाएगा. सिक्स्थ जॉब टेक्स 7 आवर्स. 25th आवर पे खत्म होगा. 25th आवर पे नेक्स्ट सेवेंथ जॉब
शुरू करेंगे. इट टेक्स 12 आवर्स. एड इन दिस 12 आवर्स, दैट इज 37th आवर पे 7th जॉब खत्म हो जाएगा. 37th आवर पे नेक्स्ट 4th जॉब आई विल स्टार्ट. 4th जॉब को कितना टाइम लग रहा है? 11 आवर्स. 48th आवर पे 4th जॉब खत्म होगा. देन आई हैव टू स्टार्ट फर्स्ट जॉब. फर्स्ट जॉब टेक्स 6 आवर्स. दैट विल गिव 54. सो 54 आवर पे फर्स्ट मशीन का पूरा काम खत्म हो जाएगा. दैट इज मशीन ए का. नाउ एज यू नो, जैसे ही फर्स्ट जॉब मेरा जो कि थर्ड जॉब जो है फर्स्ट बिगिनिंग में हुआ, तो उसका 5 आवर्स का काम हो जाने के बाद मशीन ए में से वो ट्रांसफर कर देगा मशीन बी में, और मशीन बी अपना काम शुरू करना है 5th आवर पे. तो 5th आवर पे इन टाइम बनेगा मशीन बी के लिए. एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्क टेबल फॉर मशीन बी. थर्ड जॉब पहले होना है. मशीन बी टेक्स 2 आवर्स. सो एड इन दिस 5. 7th आवर पे खत्म होगा. अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे 7th आवर्स पे मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि 11 आवर तो इसी को ही प्रीवियसली मशीन ए को लग रहा है. तो मशीन ए को 11 घंटा लग रहा है, तो 11 घंटे तक वेट करना पड़ेगा मशीन बी को. सो आई हैव टू राइट हियर 11. सो हियर देयरफॉर 4 आवर ऑफ idle time we are generating. Now 5th job we have to start machine B, that is 1 hour. मशीन बी में 5th जॉब को 1 आवर लग रहा है, तो 12th आवर पे ये खत्म होगा. अगेन 12th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू नहीं कर सकता बिकॉज 18 आवर प्रीवियस मशीन को लग रहा है. सो आई हैव टू स्पेंड 6 आवर ऑफ आइडल टाइम. देन नेक्स्ट इज सेकेंड जॉब. सेकेंड जॉब टेक्स 3 आवर्स. 3 घंटा इसमें ऐड करो. 21. अगेन 21st आवर पे मैं स्टार्ट नहीं कर सकता है, टू वेट टिल 25. So again 4 hour of idle time we are generating. Next job 6th takes 5 hours. So 30th hour पे खत्म होता है. And again I can't start at 30th hour. 37th hour पे मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा. And therefore 7 hour of idle time we are generating. Next 7th job. 7th job takes 3 hours. So 40th hour पे खत्म हो जाएगा. Again I can't start at 40th hour. I have to wait till 48th hour. तो 8 घंटे का आइडल टाइम जनरेट हो रहा है. The next job we have to do fourth one. Fourth job takes 5 hours. 5 hours इसमें आप ऐड करो तो 53rd आवर पे ये खत्म होगा जॉब. 53rd आवर पे अगेन आई कांट स्टार्ट बिकॉज प्रीवियस मशीन 54 आवर पर वो जॉब को ट्रांसफर कर रहा है, तो आई हैव टू स्टार्ट एट 54th आवर ओनली. तो 1 आवर ऑफ आइडल टाइम. एंड लास्टली फर्स्ट जॉब जो करना है उसको 4 आवर्स लग रहा है. टू ऐड 58 आवर पे मेरा पूरा प्रोसेस बी मशीन में हर एक जॉब का खत्म हो जाएगा. सिमिलर नाउ मशीन सी के लिए हम स्टार्ट करेंगे. तो 7th आवर पे जैसे ही मशीन बी ने थर्ड जॉब सबसे स्टार्टिंग वाला जॉब कंप्लीट कर दिया होगा, इट ट्रांसफर टू मशीन सी. एंड हेंस मशीन सी पे 7th आवर पे इन टाइम लेके हम सी मशीन का वर्क टेबल शुरू कर देंगे. मशीन सी में थर्ड जॉब पहले करेंगे जो 7 आवर्स स्पेंड कर रहा है. तो इट विल टेक एट 14th आवर टू कंप्लीट थर्ड जॉब. 14th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू कर सकता हूँ. फिफ्थ जॉब इट टेक्स 9 आवर्स. तो ऐड इन दिस 9. 23rd आवर पे हम खत्म करेंगे. 23rd आवर पे नेक्स्ट जॉब हमारा शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट जॉब इज सेकेंड वन. सेकेंड जॉब टेक्स 8 आवर्स. दैट इज 31 आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू कर देंगे हम. जॉब नंबर 6. 8 आवर्स. एड 8 आवर्स. 39th आवर पे जॉब फिनिश होगा. नाउ सी 39 में यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो बिकॉज प्रीवियसली
उसको 40 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा यहाँ मेरे को वेट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज जॉब सेवेंथ जॉब को 7 घंटा लग रहा है, तो इफ यू ऐड 47th आवर पे मेरा ये जॉब खत्म हो जाएगा। बट 47th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रीवियस मशीन है वही उसको 53 आवर तक वर्क में ले रहा है, तो 53rd आवर तक मेरे को वेट करना है, एंड एज अ रिजल्ट आई विल गेट 6 आवर ऑफ आइडल टाइम। नेक्स्ट जॉब इज फोर्थ जॉब को 4 घंटा लग रहा है, इसमें आप 4 घंटा ऐड कर लो। 57th आवर पे यहाँ मैं कंप्लीट करूँगा फोर्थ जॉब, बट 57th आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू नहीं कर सकता, बिकॉज 58 आवर प्रीवियस मशीन को फर्स्ट जॉब में लग रहा है। सो 58th आवर पे मेरे को स्टार्ट करने मिलेगा, एंड देन लास्टली फर्स्ट जॉब that takes 3 hours, that means 61 hour pay. Finally I will complete all the jobs in machine C. So the students ये वर्क टेबल रेडी है। अब हमें कुछ आंसर्स लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। दैट इज फर्स्ट आंसर टोटल elapsed टाइम। अच्छा, ये सब जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग मार्क करते हैं, स्पेसिफाई करके रखो। टोटल elapsed टाइम, that is capital T, that is 61 hours. Second, idle time of machine A. The total elapsed time minus last out time of machine A, that is 61 minus last out time machine A का क्या है, 54 hours. 54 hours if you deduct, you will get 7 hours. That is idle time for machine A. Third, idle time of machine B, that is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine A in machine B. So 61 minus, now what is the total of processing time of all the jobs in machine B? That is, you have to add processing time of machine B 23 hours. 23 hours that you have to deduct, so you will have 38 hours. बहुत ज़्यादा आइडल टाइम है, एंड दैट यू कैन ऑल्सो नोटिस। ये देखो सर, ये बीच बीच में कितने सारे आइडल टाइम जो जनरेट हुए हैं। आपको मालूम है सेकेंड मेथड से आइडल टाइम कैसे निकालना है। यू कैन ट्राई इट, सेकेंड मेथड, that will give you 38 hours. And lastly, idle time of machine C, that is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine C. जरा देखो, टोटल elapsed टाइम तो
61 आवर्स है माइनस मशीन सी का सभी का जॉब का प्रोसेसिंग टाइम का टोटल कितना आता है, दैट इज 46 आवर्स 46 hours. That 46 if you minus, you'll get 15 hours of idle time for machine C. So this is what similar questions we are having, जो हमने एग्जाम्पल में भी किए हैं और अभी एक्सरसाइज में भी इसी तरह से अपने को आगे बढ़ना है. Okay, so continuing with the next question, question number 6 का second. Find the optimal sequence that minimizes the total time required to complete the following jobs in the order A, B, C. हमें मशीन का ऑर्डर A, B, C ही रखना है, दिया भी A, B, C के हिसाब से है. The processing time are given in hours. So finally you have to find total elapsed time and idle time for all three machines. If they have not said anything, what is to find, then you have to find out all these answers. Okay friends, let us continue with solution. Since given problem is three machine problem, which is to be converted into two machine problem to get optimum sequence by checking following condition. So first we have to verify this conditions. आपको मालूम है दो conditions है, उसमें से कोई भी एक satisfy होना चाहिए. First क्या है condition? Minimum time of first machine, that is machine A. Minimum time of machine A should be greater than or equal to maximum time of second machine, and that is machine B. So again order is important. First machine मतलब machine A, second machine मतलब machine B. So देखो machine A का minimum time कौन सा है? Machine A has minimum time of 5 hours and maximum time of machine B is again 5 hours. So this particular condition is satisfied, which is true. Pi is greater than or equal to 5, and therefore condition is satisfied. Okay. Now converting
into two machine problem. By taking fictitious machines as G and H, where G is equals to A plus B and H is equals to B plus C. शॉर्ट में लिखा है you have to add time of machine A and machine B for getting G, and you have to add time of machine B and machine C for getting H. So we are going to make two machine problem. Okay, jobs 1, 2, 3, 4, 5. And please you add the time of machine A and machine B respectively for all jobs. 7, 8, 10, 14, 8. And for H, you have to add time for B and C. 5, 8, 9, 11, and 10. So this is two machine problem. It is ready. So let us make optimum sequence. Finding optimum sequence. G H. ओके, देखो सबसे पहले लीस्ट ड्यूरेशन कौन सा दिख रहा है आउट ऑफ ऑल, दैट इज 5 hours, बिलोंग्स टू H, job first. So this job is done. First job is done. After that 5, minimum we are having 8 hours. 8 hours यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी. तो स्टूडेंट्स मैं पहले ये वाला 8 ले रहा हूँ जो 5th जॉब में है और जी मशीन में है. सो आई एम राइटिंग 8 here. So I am writing 5th job here. So this 5th job is assigned. You cancel that. After that, I am going to take this second job for G machine. So I am going to write second job at G place. So second job is also
असाइन। अब आप समझ लेना, सेकेंड जॉब में मैं ये 8 को भी कंसिडर कर सकता था, ठीक है। आई कैन टेक दिस 8 विच बिलोंग्स टू एच ऑल्सो एंड दैट आई कैन टेक फर्स्ट। ओके, अभी मैंने फिलहाल ये जी मशीन के लिए लिया हुआ है, ठीक है ना। सो नाउ नेक्स्ट मिनिमम इज 9। 9 belongs to third job in H machine. तो लास्ट में जो बचा है फोर्थ जॉब will appear here. So this is my first sequence. Now alternative optimum sequence जिसमें मैं तो के पहला पोजीशन जो 5th ड्यूरेशन का था 5 आवर का, 5th जॉब सो सबसे कम 5 आवर का जो ड्यूरेशन था वो फर्स्ट जॉब का मैं एच मशीन में मैं ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, उसके लिए कोई टाई केस या कुछ अल्टरनेट सिचुएशन जनरेट नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने नेक्स्ट मिनिमम 8 जो देखा उसके लिए मेरे को अल्टरनेट बताना है। तो स्टूडेंट मैंने पहले ये 5th जॉब लिया था 8 के लिए, राइट। मैं अभी भी वही ले रहा हूँ मशीन जी के लिए, मगर नेक्स्ट 8 मैंने ये सेकेंड जॉब के लिए मैंने लिया हुआ है, दैट इज जी मशीन का लिया था सेकेंड। तो ये जो है इसके जगह पर मैं ये 8 भी ले सकता हूं एंड दिस 8 belongs to machine H. So that particular 2 second job will appear here. You can properly notice alternatively किस तरह से बैठेगा, मशीन G में जाएगा, दूसरे में मशीन H में गया, and this way I got alternate way. So अब बाकी अभी क्या बचा है, तो सेकेंड जो हो गया। अब नेक्स्ट मिनिमम इज आफ्टर 8 it was 9 and therefore that particular third job जिसका 9 आवर का ड्यूरेशन है, उसके बाद वो जॉब मैं लूंगा दैट इज इन एच मशीन एंड लास्ट में जो बचा है फोर्थ, ठीक है। अब जो अल्टरनेट सीक्वेंस बनेगा in this alternate sequence, let us start our sequence by having minimum one first. As usual यहाँ फर्स्ट जॉब में 5 is minimum in H machine, so here the first job I will place at H machine. After 5 ये हो जाने के बाद उसके बाद देखो नेक्स्ट मिनिमम आता है 8 एंड 8 जो है वो सेकेंड जॉब में भी है और 5th जॉब में भी। सेकेंड जॉब में तो दोनों मशीन के लिए है, जी और एच के लिए। तो अब मैं ये 8 जो एच
मैंने प्रीवियसली लेके रखा है, अब मैं वो जी में लूंगा। तो जी मशीन जॉब 2 आई विल प्लेस हियर। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट 8, तो जॉब ही पूरा सेकंड खत्म हो गया। नेक्स्ट 8 डायरेक्टली फिफ्थ की बारी आ जाएगी। दैट इज गोइंग टू कम 8 इन जी मशीन, दैट इज फिफ्थ जॉब हियर स्टूडेंट्स। और अब ये 8 कवर हो गया है फिफ्थ जॉब का। अब नेक्स्ट मिनिमम जो आता है, अब बचे हैं दो जॉब्स, थर्ड और फोर्थ। उसमें मिनिमम है हमारे पास 9, जो 9 कवर हो रहा है एच मशीन में थर्ड जॉब के लिए। तो हियर दिस विल अपीयर थर्ड जॉब, एंड बचा है फोर्थ जॉब, दैट विल कम हियर. So as a result, we are getting this particular alternative optimum sequence number third. Previously it was second. तो स्टूडेंट्स ये तीन टोटल हमें alternate optimum sequence total मिली हुई है. Out of this, now let us start our work table out of any one of this alternative sequence. Let us take first alternative sequence, that is 5 2 4 3 1. Machine A, machine B, machine C. Students, prepare this work table for 3 machines. And beginning should be 0 hours. First machine A के लिए जॉब शुरू करेंगे. फिफ्थ जॉब पहला है. फिफ्थ जॉब टेक्स 5 hours. 0 plus 5 5. फिफ्थ आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू हो जाएगा सेकंड, दैट इज 7 hours. 12th आवर पे फोर्थ जॉब शुरू करेंगे 9 hours. 21st आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू होगा थर्ड 6 hours. 27th आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू करेंगे, दैट इज फर्स्ट जॉब 5 hours. 32nd आवर पे मेरा फाइनली मशीन ए का काम खत्म होना है. आफ्टर दैट मशीन बी में जैसे ये फर्स्ट जॉब कंप्लीट हुआ होगा, मशीन ए ने फिफ्थ आवर पे ट्रांसफर किया होगा. तो फिफ्थ आवर पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मशीन बी का काम. सबसे पहला फिफ्थ जॉब मशीन बी में देखो 3 hours 8th आवर पे. बट नेक्स्ट जॉब सेकेंड 8th आवर पे स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस मशीन ही उसको 12 घंटा लगा रहा है. 12th आवर तक वेट करना पड़ेगा. 4 hour of idle time we have generated. Second job 1 hour 13. Again we can't start at 13. next job यही 21 आवर लगा रहा है, तो 21 आवर तक राह देखना पड़ेगा. 8 hours of idle time we are generating. 21st आवर पे फोर्थ जॉब शुरू करेंगे, it takes 5 hours. 26th आवर पे जॉब खत्म होगा, बट नेक्स्ट जॉब we can't start on 26th hour. The previous machine only take 27 hours, so 27 पे शुरू होगा, 1 घंटे का idle time आएगा. Then third job we will start 4 hours. 31st आवर पे खत्म होगा. 31 आवर it takes, and 31st आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू भी करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा. It takes 32 hour for completing previous job, previous machine.
इज क्यूइंग एट 32 आवर्स, तो 32 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा यहाँ पे भी आइडल टाइम आएगा। एंड देन लास्ट जॉब फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, 2 आवर्स रिक्वायर्ड, देन 34th आवर पे ये खत्म होगा। नाउ देयर इज मशीन सी, नेक्स्ट मशीन सी, ये 8वें आवर पे मशीन सी प्रोसेस करने के लिए जॉब उसको ट्रांसफर करके मिलेगा फ्रॉम मशीन बी। मशीन सी विल स्टार्ट फर्स्ट जॉब 5th, इट टेक्स 7 आवर्स, तो 15th आवर पे कंप्लीट होगा। 15th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू करूंगा, दैट इज सेकेंड, दैट इज it takes 7 hours. 7 hours if you add in this, 22 hour पे खत्म होगा, but I can't start at 22nd hour, I have to wait till 26th hour, 4 hours of idle time, then I will start fourth job, it takes 6 hours, 32 hours तो ये खत्म होगा, 32 hour नेक्स्ट जॉब शुरू कर देंगे, दैट इज थर्ड जॉब। थर्ड जॉब के लिए 5 घंटा, 37 आवर्स, 37 आवर पे नेक्स्ट जॉब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट जॉब, इट टेक्स 3 आवर्स, एंड हैंस 40th आवर पे ये थर्ड मशीन सी अपना काम पूरा कर लेगा। So this work table is finished. Now you have to write down the important conclusions. That is, first one is total elapsed time, that is T, that is 40 hours. Second, idle time for machine A, that is total elapsed time minus last out time of machine A. So total elapsed time 40 minus out time, मशीन ए का आउट टाइम कितना है 32, that is 8 hours. Third, idle time for machine B, that is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine B. So 40 माइनस, जरा देखो तो सेकेंड मशीन जो बी है उसका टोटल टाइम कितना होता है 15 आवर्स, so deduct 15, that will give 25 hours. And lastly, number 4, idle time for machine C, total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine C. Total elapsed time क्या है 40 माइनस सी मशीन का टोटल प्रोसेसिंग टाइम देखो कितना है इस 28 आवर्स, तो 28 इसमें माइनस करिए, यू विल गेट 12 आवर्स।
of idle time. And if you check with alternate method जो हमने किया है, and in that method also you will find the similar answers. Let us continue with the next problem, number 7. A publisher produces 5 books on mathematics. The books have to go through composing, printing and binding done by 3 machines, PQR. The time schedule for the entire task in proper unit is as follows. हमें तीनों मशीन का पांचों बुक के लिए जितना भी समय लग रहा है वो टेबल में दिया है. Determine the optimum time required to finish the entire task. ऐसे हमको खाली ऑप्टिमम टाइम पूछा है, मतलब टोटल एलएप्स टाइम, जो मिनिमम टाइम, ऑप्टिमम मतलब यहाँ मिनिमम टाइम लेना है, तो टोटल एलएप्स टाइम ही पूछा है. बट वी विल ऑल्सो फाइंड आइडल टाइम फॉर योर प्रैक्टिस. तो सबसे पहले ये 3 मशीन प्रॉब्लम है जिसको हम 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे. गिवन प्रॉब्लम इज 3 machine problem. Converting into 2 machine problem for getting optimum sequence. We check following conditions. ठीक है. First, minimum time of first machine, that is minimum time of machine P should be greater than or equal. फर्स्ट मशीन जो है हमारे लिए P है, मैंने स्पेसिफिक नाम जो भी दिया है क्वेश्चन में वो लिखा है. मैं फर्स्ट मशीन भले बोलता हूं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट मशीन का नाम दिया है वो लिखने का. should be greater than or equal to maximum time of second machine, that is machine Q. तो जरा देखो तो फर्स्ट मशीन में मिनिमम टाइम क्या है, that is 4 hours. That is 4 hours. Is it greater than or equal to maximum time of machine Q? Maximum time Q का क्या है? Maximum time is 6 hours. So this is not true. Okay. Which is not true. So minimum time of machine P is 4 hours. Greater than or equal to maximum time of Q machine is 6. तो ये तो ट्रू नहीं है, which is not true. तो भाई हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे. पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे, therefore it is
नॉट सेटिस्फाइड। तो भाई हमको तो दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना है ना। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अगेन मिनिमम टाइम ऑफ थर्ड मशीन मतलब हमारे लिए है मशीन आर should be greater than or equal to maximum time of मशीन क्यू। तो देखो तो जरा मिनिमम आर का टाइम क्या है। मिनिमम आर का टाइम 6 आवर्स का है। ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन क्यू इज 6, जो हमने ऊपर ही ढूंढा है। तो अब ये पता चल रहा है विच इज satisfied, which is true. Hence, this condition is satisfied. Therefore, converting into two machine problem by taking machine G and H as a fictitious machine where G is equals to P plus Q and R is equals to Q plus N, and H is equals to Q plus R. So first we prepare two machine problem. So let us prepare two machine problem. For 5 books that are our jobs A, B, C, D, E. Add the timings respectively. 5 plus 4, this is 9. This is 15. 10. 9. Again 9. For next machine R and Q, you to add for getting H. 13. 16. 8. 10. And 15. So we have completed this two machine problem. Now we have to make optimum sequence. So now preparing optimum sequence.
चलिए, ओवरऑल मिनिमम पहला टाइम ड्यूरेशन कितना दिखता है आपको? सबसे पहले मिनिमम 8 आवर दिख रहा है. मिनिमम टाइम इज 8. बिलोंग्स टू सी बुक, दैट इज सी जॉब इन मशीन एच. यहाँ पे हम सी लिखेंगे. So C job is assigned. After that next minimum we are getting 9. और 9 देखो 3 जगह पे है. G मशीन में ही तीनों 9 है. एक तो बुक ए के लिए है, बुक डी के लिए और बुक ई के लिए है. यहाँ टाई सिचुएशन जनरेट होगी. आई कैन टेक दिस 9 फर्स्ट और दिस 9 फर्स्ट और दिस 9. एंड उसके ऑर्डर के हिसाब से अल्टरनेटिव सीक्वेंस मिलते जाएगा. आप ऑर्डर चेंज करते जाओगे. तो मैं पहले अल्फाबेटिकली ले लेता हूँ. पहले ए, फिर डी और फिर ई. तो ध्यान रखना स्टूडेंट जी, ए डी और ई के बीच में एक मेरे को पहला सीक्वेंस मिला ना, दैट आई कैन अल्टरनेटिवली टेक एज ए ई डी. देन आई कैन टेक बी ए ई. देन आई कैन टेक बी ई ए. देन आई कैन टेक ई ए डी एंड देन आई कैन टेक ई डी ए. स्टूडेंट इस प्रकार से आप अल्टरनेटिवली 6 सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं. एंड फाइनली ये ए बी ई हो गया. देन आई कैन टेक लास्टली जो बचा है बी. तो ये 3 जगह के लिए अल्टरनेटिव सीक्वेंस मैं जनरेट करूंगा. So this way I will prepare other remaining sequence where I am going to write this tie case first, that is A E B, then B A E, then B E A, then E A D and E D A. बाकी जो दोनों जॉब है बुक्स के, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट. उसमें कोई टाई केस का हिसाब नहीं है. सो बी और सी ये अपने जगह पे सभी सीक्वेंस में एज इट इज रहेंगे. सो दिस वे, दिस वाज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. नाउ स्टूडेंट एनी वन सीक्वेंस यू कैन कंसीडर. मैं समझ लो लास्ट सीक्वेंस ले लेता हूँ, सिक्स्थ, E D A B C. So let's make a work table with the help of sixth alternative optimum sequence, which is in front of your screen, and this is the sixth sequence. With the help of, we are going to prepare a work table. Okay, so student, let us properly prepare this particular work table where you mention our books, that is our job to be performed in the order E D A B C. E D A B C. And let us
consider machine P first, and you know the first starting in time will be always 0. Now let us see the time schedule for machine P. First job that we have to perform, that is E. It has 5 hours. So you add in this. So at the end of 5th hour, this E job will be finished, and next D job will be started. D job consumes 6 hours. You add in this. 11th आवर पे ये खत्म होगा, एंड नेक्स्ट 11th आवर पे ए जॉब शुरू हो जाएगा. ए जॉब कंसिडर्स 4 hours. You add in that. तो 15th आवर पे ये खत्म होगा ए जॉब, एंड 15th आवर पे नेक्स्ट बी जॉब शुरू हो जाएगा. बी जॉब विल टेक 9 hours. सो 15 प्लस 9, 24th आवर पे ये खत्म होगा, एंड 24th आवर पे नेक्स्ट जॉब सी स्टार्ट होगा. सी जॉब टेक्स 8 hours. Add 8, 32 hours. So finally here this machine P completes its work for all the books at 32nd hour. Now जब भी मशीन P ने सबसे पहला जॉब E कंप्लीट करा होगा, इसने इमीडिएटली वो जॉब को मशीन Q में ट्रांसफर किया होगा. तो 5th आवर पे मशीन P ने ये जॉब मशीन Q को ट्रांसफर कर दिया है, और उसके ही साथ मशीन Q का भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा. So now I am preparing work table for machine Q, where on 5th hour it starts job for book E. अब जरा देखो बुक E में Q मशीन को कितना ड्यूरेशन लग रहा है, 4 hours. Add in this 9. अब यही आपको चेक करना ऑलवेज व्हेन 9th आवर आप ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट जॉब के लिए कि 9th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू करने जाऊंगा भी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 11 घंटा ही इसको प्रीवियस मशीन को डी जॉब में लग रहा है. तो 11वें आवर तक मशीन क्यू को वेट करना पड़ेगा, वो जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकता. ये सब आपको मालूम है. अभी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज. तो अभी ये सब बातें नई नहीं आपके लिए. सो this job B cannot be started at 9th hour, it should be started at 11th hour. So on 11th hour D job will be started. D job को देखो जरा कितना ड्यूरेशन जा रहा है, 3 hours. Add this 3 hours. 14th hour. Again I can't start at 14th hour, I have to start at 15th hour. अच्छा, अर्लियर केस में जो 9th आवर पे नहीं हुआ जॉब स्टार्ट, 11th आवर पे हुआ, तो वहां आइडल टाइम, वेटिंग टाइम जनरेट हुआ था 2 घंटे का. एंड सिमिलरली हियर 1 hour ऑफ आइडल टाइम इज जनरेटेड. नाउ एट द 15th आवर I will start job A. Now see, job A takes 5 hours in machine Q. Add in this 20th hour पे मैं ये finish करूंगा. Again I can't start at 20th hour, I have to wait till 24 hour, and as a result 4 hour of idling time I am generating. So next B job we are starting at 24th hour. B job को देख लीजिए कितना आवर जा रहा है Q मशीन में, तो 6 घंटा जा रहा है. Add this 6 hours, तो 30th hour पे मैं पहुंचूंगा. Again at 30th hour I can't start next job, I have to wait till 32nd hour, and hence again 2 hour of idle time we are generating. And lastly we have to perform job C in machine Q, which consumes 2 hours, and as a result 34th hour पर मेरा Q मशीन का हर एक बुक का जॉब का प्रोसेस कंप्लीट करके हो रहा है 34th आवर. एंड नाउ आई विल कंसिडर द नेक्स्ट मशीन. जैसे ही मेरे मशीन Q ने 9th आवर पे जॉब यहाँ पे E फर्स्ट जॉब कंप्लीट करा होगा, उसने इमीडिएटली प्रोसेस मशीन R के लिए ट्रांसफर करा होगा. तो 9th आवर पे मेरा नेक्स्ट मशीन R का काम शुरू हो जाएगा. इट इज इन टाइम. E जॉब पहला जॉब है. अब मशीन R का ड्यूरेशन देखना है. R में E जॉब
11 आवर कंसीडर कर रहा है, तो यू एड दैट 11 आवर्स। 20th आवर पे मेरा ई जॉब खत्म हो रहा है एंड हेंस 20th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब बी स्टार्ट कर दूंगा। बी जॉब आर मशीन में 7 घंटा ले रहा है। एड इन दिस 27th आवर पर मेरा ये डी जॉब खत्म होगा एंड 27th आवर पे मैं ए जॉब नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो ए जॉब में कितना ड्यूरेशन जा रहा है मशीन आर में। यहाँ हम लोग मशीन आर के अंदर है अभी 8 घंटा। एड इन दिस 8 आवर्स, इट विल बी 35 आवर्स। 35th आवर पे मेरा ए जॉब खत्म होगा एंड 35th आवर पे मैं नेक्स्ट बी जॉब शुरू कर दूंगा। बी जॉब टेक्स 10 आवर्स, इसमें 10 ऐड करो तो 45। 45th आवर पे बी जॉब खत्म होगा एंड 45th आवर पे मैं नेक्स्ट दैट इज सी जॉब आई कैन स्टार्ट। सी जॉब को लग रहा है 6 घंटा। 6 घंटा इसमें आप ऐड करो, आई विल बी रीचिंग एट 51st आवर, दैट इज द फाइनल टोटल elapsed टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं आपको मार्क करने के लिए बोल ही रहा हूँ, दैट यू जस्ट highlight and now I have to write down the final answer as a conclusion। पहले तो फर्स्ट आंसर टोटल elapsed time, that is T, that is 51 hours। सेकेंड आंसर जो हमें लिखना है दैट इज फॉर आइडल टाइम एंड दैट इज फॉर फर्स्ट मशीन, दैट इज मशीन P। तो आइडल टाइम फॉर मशीन P, formula is total elapsed time minus last out time of machine P। तो टोटल elapsed टाइम है 51 आवर्स और जरा देखो तो P मशीन का लास्ट आउट टाइम कॉलम के लिए लास्ट दैट इज 32। so this 32 if you deduct it will give you 19 hours of idling time। Second, next one, third, second idle time for machine Q, that is total elapsed time minus sum of the processing time of all the jobs in machine Q। so students, total elapsed time जो है 51 hours minus sum of the processing time of all the jobs in machine Q, मतलब machine Q का जरा आप देख लो सभी जॉब के प्रोसेसिंग टाइम का टोटल कितना आएगा। 20 आवर्स आ रहा है, चेक इट and hence that 20 hour if you minus you will get 31 hours of idling time of machine Q। and next one, idle time for machine R, last machine, formula total elapsed time minus sum of the processing time of machine R। तो टोटल elapsed time is 51 और जरा देख लो तो R मशीन के लिए सभी जॉब का प्रोसेसिंग टाइम क्या मिलता है। Is it 42 hours? Check it and you minus it, you will get 9 hours of idle time। So students, this is done with the formula
And if you want to see, this is last question, so I would like to give you the alternate option, that alternate method, that is सेकेंड मशीन जो मशीन क्यू है, इसका आइडल टाइम आपको जो ढूंढना है, जो कि आप सेकेंड मशीन मतलब क्यू को देख लो, उसमें सबसे पहले तो ये 5 घंटा स्टार्टिंग का उसको वेट करना पड़ा होगा, बिकॉज जब तक मशीन पी शुरुआत नहीं करता है और शुरुआत करके उसका पहला जॉब खत्म करके उसको ट्रांसफर नहीं करता है, तब तक वो 5 घंटे तक मशीन क्यू स्टार्टिंग में वेट करके बैठेगा. सो दैट 5 आवर प्लस, आगे देखते जाइए. ये जो बीच बीच का मिला है ना, 2 आवर्स, 1 आवर, 4 आवर, मैंने एरो करके ऊपर लिखा है ना, दैट यू टू ऐड 2 + 1 + 4 + 2. जरा ओरली कर लीजिए ताकि मैं फटाफट लिख लूं. मिला के कितना है? 9. और मशीन क्यू की बात कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है. और कौन सा आइडल टाइम मिलेगा? तो फिर देख लो स्टूडेंट, लास्ट के अंदर मशीन आर जब प्रोसेस करके 51 आवर तक अपना काम खत्म नहीं कर रहा है, 51 आवर तक, उसके पहले जब मशीन क्यू ने अपना 34 आवर पे काम खत्म कर लिया है, तो 34 आवर के बाद मशीन क्यू को 51 आवर तक वेट करना पड़ेगा. मतलब 34 पे तो मशीन क्यू का काम खत्म हो गया, उसके बाद वो बैठा है, क्योंकि उसके बाद अभी कोई काम नहीं. क्यों बैठा है? क्योंकि मशीन आर का प्रोसेस चालू है. कब तक चालू है मशीन आर का प्रोसेस? 51 आवर तक. और 34 पे तो उसका काम खत्म हो गया है. सो 51 - 34. आ गया ना 31 आवर्स. सो दिस वाज माय अल्टरनेट मेथड. ये मैं काफी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है. स्टार्टिंग के एग्जाम्पल के क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से मैंने मोर और लेस सभी में मैंने बताया रफली. बट दिस इज ऑल्सो वैलिड मेथड ना प्लीज. दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड मेथड प्लीज. ये मैं लास्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. बट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन ट्राई दिस. ओके. बट मोस्टली ऑफली क्या आता है कि हम फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का सीधा एप्लीकेशन कर डालते हैं, 31 आवर आ जाता है. उसी तरह से फोर्थ पॉइंट पे मैं मशीन आर का जो आइडल टाइम है वो भी मैं अल्टरनेटिव से आपको बता देता हूँ. देखो आर मशीन जो है उसको स्टार्टिंग में 9 घंटा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये प्रीवियस मशीन उसको जॉब ट्रांसफर करके नहीं दे रहा है तब तक मशीन आर अपना काम शुरू नहीं कर सकता. सो 9 आवर दैट मशीन आर हैज टू वेट. एंड देखो तो जरा इन बिटवीन में कुछ मैंने एरो मार के बताया है कि आपको कोई ऐसा आइडल टाइम है? नहीं है. तो ओनली दिस 9 आवर is the final idle time that we can see, and that is coming in this formula method also. So student, here we are ending this particular exercise. खास सूचना ध्यान रखिए, every student must go through the theory part, basic concept, उसके फॉर्मूला, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैसे तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैंने एक एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि वो एज अ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं. इट इज वेरी मच बेनिफिशियल टू यू. नेक्स्ट, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल. एक तो मैंने पहले बताया मेरे सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन ये एडिशनल आपके लिए अवेलेबल होते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. थर्ड, इलस्ट्रेशंस. Illustration in the sense the solved example given in the textbook before exercise that you have to practice by your own, because उसमें आपके पास solution भी है, but don't see a solution, just practice by your own and then you check with the given solution. आप बाद में check करने के बाद आप खुद करो
और बाद में चेक करो, वेरीफाई योर आंसर्स. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन. मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. दैट क्वेश्चंस आल्सो यू कैन डू इट एट प्रैक्टिस. And the fifth and most important point which I am going to give you from my side, that is important board questions. स्टूडेंट, मैंने आपके लिए बोर्ड के पास्ट ईयर के पेपर में से क्वेश्चंस ये चैप्टर के अलग से निकाल के रखे हैं. दिस बोर्ड क्वेश्चंस which I am giving to you, that will be very much important for your practice purpose. And properly this chapter we are today finishing. Enjoy and practice more. Thank you.